Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and today is the fourth session of chapter number 3 of class 9, Laws of Motion. I do expect all of us must have watched the previous session. We started with the basic meaning of force. We talked about the types of forces, contact forces, non-contact forces, the types of contact and types of non-contact force in the session number 1. We talked about Newton's first law. We talked about what is inertia. We talked about what is force. We talked about some illustration based on Newton's first law. In our second session, we talked about Newton's second law. We talked about momentum. We talked about many more numericals based on Newton's second law, numerical based on F equals to ma in the last session, which was the session number 3. And today on, we'll be starting with the third law of Newton, and obviously we'll continue further with a discussion on universal law of gravitation. I do expect all of us must have watched the previous 3 sessions. If anybody of you have missed out with any of the lecture, what you need to do is like go back to the playlist of class 9. Class 9 का एक अलग से playlist बना हुआ है. Go and check out all the videos you are left with. Try to complete those videos and then again come back to this video. भाई किसी भी चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए एक नियम है, हमेशा लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ और फिर इस 4th वाले लेक्चर पर आओ. ठीक है, कभी भी ये ऑर्डर ब्रेक करो तो क्या होगा भाई, कंटिन्यूएशन खराब होगा, चीजें कनेक्ट नहीं कर पाओगे. फिजिक्स में सारी बातें कनेक्टेड रहती हैं. पीछे वाले सेशन में बताई गई बातों को हम लोग इस सेशन में जरूर यूज करेंगे. मतलब एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सबको पता है कि F इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला कैसे आया, किसने बताया, इसका यूज कैसे है, क्या है, राइट? जो हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था. जब मैं लास्ट वाले लेक्चर में बात कर रहा था, मैं ऑब्वियसली बार बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई सबको पता है कि फोर्स का मीनिंग सबको पता है, जो कि हम लोग उसके पीछे लेक्चर में समझे थे, एंड सो ऑन. Right? So now, without wasting any time, let's continue with the session. Let's start with the session. I hope all of us are already ready with a pen and copy, and let's get started. So, what is Newton's third law of motion, by the way? What is Newton's third law of motion? To every action, there is always an equal and opposite reaction. भाई न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि फोर्स क्या है. The first law of Newton talks about the definition of force. The second law of Newton talks about the mathematical formula of force, and this law will talk about the behavior of force, how actually force behaves. You know, before we advance any further, इसके आगे कुछ भी बढ़े इसके पहले मैं बता दूं भाई, ये जो लॉ है, ये जो भी न्यूटन के सारे लॉ हैं, ये 16th मतलब 17th सेंचुरी में बनाए गए हैं सारे. मतलब इफ यू नो गो बैक यू सी द एरा ऑफ न्यूटन वाज 1642 और 43 से लेकर 1726, ये कुछ एरा था न्यूटन का. जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ दिस गैलीलियो, उसके ठीक डेथ के 1 साल 1 महीने बाद हम लोग कहते हैं न्यूटन का बर्थ हुआ. जो सारी बातें मोशंस के बारे में गैलीलियो समझा रहा था, उनके पीछे के कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, उसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था. No, we were talking about v equals to u plus 18 in our last chapter. We were talking about v squared equals to u squared plus 2s. We were talking about s equals to ut plus half t square. But we were always, talking about that. Obviously, if a body is having some speed and it gets some speed, afterwards, if there's a change in velocity, there must be something like acceleration that the body must have faced. But we were never talking about why the body was accelerating. Who was causing this acceleration? And Newton actually talked about the causes of acceleration. Newton talked about why a body changes its velocity. तो पीछे वाले चैप्टर में हम लोग बात करते थे कि बॉडी में जो भी मोशन हो रहा है, वो मोशन क्या था और अब क्या हो गया, कितने देर में हुआ. We were only talking about the effects. We were never talking about the causes. Newton actually explained the causes, why a body at rest starts moving, why a body in motion comes to rest or changes its direction or changes its velocity and so on. So Newton actually explained the causes behind it. We'll talk about it in great detail. So he actually said that force is responsible for all these changes, and that's why in this chapter primarily we are discussing about force. The first law talks about the definition of force, what is force actually. The second law talks about what is the mathematical formula for force, which is F equals to ma. And the third law talks about the behavior of force. It says that to every action there is an equal and opposite reaction. The action and reaction never acts on the same body. That's something very important. We'll talk about this again later on. बस अभी के लिए बात पढ़ लो. The action and reaction never acts on the same body. They act on two different body.
बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ काम करते हैं. दे एक्ट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ काम करते हैं, है ना, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर. इसका बोलने का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लो, ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग जमीन पर उछल रहे हैं या जमीन पे खड़े हैं. तो वॉट योर फुट इज डूइंग, इट्स गिविंग एन एक्शन टू द फ्लोर, एंड दिस फ्लोर इज डूइंग is what it's putting a reaction on you. Whenever you're walking on road, it's also because of Newton's third law. What you are doing, you are trying to push the floor back. In return, the floor is giving you a force in the forward and you are moving forward. You were at rest right now like this. तुम अभी ऐसे रेस्ट पर थे, और तुम जब चल पा रहे हो, तुम कैसे चल पा रहे हो? तुम रेस्ट से मोशन में आए. You were at rest initially and you now start walking. हुआ कैसे, क्या हुआ? न्यूटन का लॉ कहता है अगर तुम रेस्ट से मोशन में आ रहे हो, जरूर कोई ना कोई फोर्स काम किया होगा. पता है कौन सा फोर्स काम करता है रियल लाइफ में? यहां पे फ्रिक्शन काम करता है. यू एक्चुअली पुश द फ्लोर बैकवर्ड एंड द फ्लोर गिव्स यू अ फोर्स फॉरवर्ड, एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड. सो in an interaction of two bodies, the magnitude of reaction is equal to the magnitude of action. These two are generally or always equal, always equal. Action reaction are always equal forces. But the amount of force you put to the floor, the same amount of force the floor will put on your foot, right? They are equal in magnitude, but they are in opposite direction to each other. They are in opposite direction to each other. But no, let's talk about pushing a wall. Pushing a wall. Let's talk about this example. तुम जब दीवार को धक्का मारते हो, क्या दीवार मूव करता है? नहीं. तो जब तुम दीवार को धक्का मार रहे हो, putting an action on the wall, and when you're putting an action on the wall, you're trying to push the wall, but the wall is not moving. The wall is actually putting a reaction on you. And this action reaction are exactly equal but in opposite direction and acting on two different bodies. Like you are putting the action on the wall is putting a reaction on you. And you know, ये अभी तो ऐसा है कि तुमको पता दीवार है, दीवार तो हिलेगा नहीं, तो तुम जो भी धक्का मार रहे हो, दीवार पर, और तुम्हारा बॉडी अगर आगे नहीं जा पा रहा है तो दीवार भी तुमको इतने धक्का मार रहा होगा बोल के तुम नहीं आगे जा पा रहे हो, है ना. अभी उससे अच्छा एग्जांपल मेरे को लगता है ना, ये वाला बड़ा फेवरेट एग्जांपल है मेरा. आई मीन दिस मैन इज ट्राइंग टू जंप ऑफ द बोट. तो जैसे वो बोट पे जंप मारता है तो क्या होता है, बोट पीछे जाता है. इवन व्हेन द मैन इज रनिंग फॉरवर्ड, बोट पीछे जा रहा है. इवन व्हेन द मैन इज रनिंग फॉरवर्ड, एक्चुअली क्या हो रहा है, जब वो आगे दौड़ रहा है उसका पैर बोट को पीछे धक्का मार रहा है, इसलिए वो आगे जा पा रहा है. तो नो, इट्स लाइक एक्शन. द बोट इज गिविंग एन एक्शन and the man is giving a reaction, or you can say like this, the man is giving an action on the boat and the boat is giving a reaction on the man, because of which it jumps off the boat, है ना. तो again, when you talk about a book kept on the table at rest, this book is putting a push on the table and the table is returning it the same amount of push on the book. It's like an action and that's like the reaction. If this is some W, that is also same W. W मतलब if that's the weight of the book, अगर वो टेबल में इतना क्षमता है कि वो बुक का भार संभाल सकता है तो उतना ही वो वेट ऊपर दे देगा. अगर वो नहीं संभाल सकता है तो टेबल टूट जाएगा और वहां से बुक नीचे गिरने लगेगा. ठीक है. सो अ बुक ऑन द टेबल. मोशन ऑफ बोट इन वाटर. मोशन ऑफ बोट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन. जनरली जब भी हम लोग बोट रोल कर रहे होते हैं इस तरह, ठीक है, रोलिंग कर रहे होते हैं इस तरह, तुम लोग देखते हो ना नौका चलाते लोग, नाविक लोग इस तरह धक्का मारते हैं पानी को, वो बोट के जिससे रोड करते हैं. तो जब वो रोड करते हैं एक्चुअली क्या करता है, उनका जो रॉड है इसमें एक आगे एक प्लेट टाइप एंड रहता है, वो पानी को पीछे धक्का मारता है, राइट. और तुम उस रोड को पकड़ के बोट के अंदर हो, लेट्स से. सो व्हाट यू डूइंग इज यू पुटिंग एन एक्शन ऑन द वाटर एंड वाटर इज गिविंग ए रिएक्शन ऑन योर स्टिक ऑल्सो, एंड योर स्टिक इज लाइक is with you and you are with the boat, so the boat is getting a reaction in the forward. We are putting a force backward, action, the boat is getting a reaction forward. अभी जो तुम जितने भी अपने आसपास जो बोटिंग करने जाते हो, पेडलिंग करते हो, पेडलिंग में भी होता है. पेडलिंग में क्या होता है, जब when you are pedaling you are putting the action on the water backward and you are getting a reaction forward and so on, and this happens always. So motion of boat moving away from the shore, motion of boat moving away from the shore, ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके. फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन. नाउ व्हेनेवर यू नो फायर, you shoot someone, there is an action on this bullet
एंड यू गेट अ रिएक्शन ऑन द गन। जब लोग गोली मारते हैं ना, जब भी वो कभी देखना कहीं पर भी अगर तुम सर्कस में जाके गोली मारते हो तो क्या होता है, जब तुम मार रहे हो तो बुलेट निकल रहा है आगे और तुम्हें पीछे का धक्का लगता है, हल्का धक्का लगता है। अभी जितना स्पीड से आगे जाएगा, जितना धक्का उस बुलेट को मिला होगा, उतना ही जोरदार धक्का तुम्हें तुम्हारे बुलेट उस गन पे मिलने वाला है। दैट्स कॉल्ड रिकॉइल, दैट्स कॉल्ड रिकॉइल। मतलब इस बुलेट को अगर मिला एक्शन तो इस गन को मिला रिएक्शन, ठीक है। नाउ रॉकेट मोशन इज अगेन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये जो फ्यूल है, ये जमीन को धक्का मारता है या फिर आसपास के एटमॉस्फेयर को धक्का मारता है, गिव्स एन एक्शन ऑन इट एंड द रॉकेट गेट्स अ रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ इट। कैचिंग अ बॉल, व्हेन यू कैच अ बॉल, तो द बॉल हिट्स योर palm, you get an action on your palm, right? You get an action on your palm, and what you are doing, you are giving the same amount of force on the ball in the forward direction. So when you catch a ball, the ball is giving an action on your palm and you're giving a reaction on the ball. But again, understand this, both the magnitudes are same, and we obviously understand that these action reaction pairs on two different bodies. Action तुम्हारे हाथ पे लगा, reaction तुमने बॉल को दिया, दो अलग बॉडी पर काम करती है। मोशन ऑफ अ मैन ऑन ग्राउंड इज लाइक, जो हम लोग भी चल रहे हैं जमीन पर, ठीक है, तुम जमीन को धक्का मारते हो पीछे, उतना ही जमीन तुम्हें धक्का मारता है आगे। तुम अगर स्लिप करके गिरते हो तो ऐसा हो रहा है कि भाई तुमने जमीन को जो धक्का मारा, जमीन ने तुमको रिटर्न में उतना धक्का नहीं दिया, तुम गिर जाओगे। जैसे केले के छिलके पे तुम पैर रख दो तो क्या होगा, केले का छिलका क्या करता है भाई, फ्रिक्शन तुम्हें तुम्हारे ज़मीन से हटा देता है। व्हेन यू स्टेप ऑन द स्पील ऑफ बनाना, क्या होता है, जब तुम उसे पैर रखोगे, तुम धक्का मारोगे उसे पीछे, वो स्लिप कर जाएगा, तुम्हारा पैर अटकेगा नहीं, तुम आगे गिर जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक्शन रिएक्शन थोड़ा इम्बैलेंसमेंट होता है, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल जनरली एक्शन रिएक्शन पे हमें अपने आसपास में हर जगह दिखता है। तुम अगर कभी खड़े हो कहीं पर, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि तुम जमीन को धक्का मारे हो, जमीन तुम्हें ऊपर धक्का मारा है। अगर जमीन तुम्हें उतना ऊपर धक्का नहीं मार पाता तो जमीन टूट जाता या वो टेबल टूट जाता, ठीक है, और तुम नीचे चले जाते। तुम कोई कांच के ग्लास पे पैर रखे तड़ से, या फिर तुम कोई कांच या फिर कोई पत्थर को तोड़ने गए हाथ से, जो लोग मार्शल आर्ट्स वाले लोग होते हैं ना, जो हाथ से पत्थर तोड़ते हैं, तो अगर वो हाथ से तोड़ने गए और अगर पत्थर टूट गया, इसका मतलब जितना वो एक्शन दिया एग्जैक्टली उतना वो रिएक्शन देने के लायक नहीं था, बोल के वो हट गया, जगह छोड़ दिया, मतलब नहीं दे पाएंगे उतना, ठीक है, बोल के तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हाथ एक्सेलरेट कर जाता है, आगे भी फर्दर आगे चला जाता है। और वही तुम्हारा अगर पत्थर नहीं टूटा तो तुमने जितना एक्शन दिया उतने तुम्हें रिएक्शन मिला है। जनरली ये चीज होती है, ठीक है। विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल, यू नो, व्हेन वी एडवांस टू आवर हायर स्टडीज। तो फिलहाल न्यूटन्स थर्ड लॉ इज, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, एंड दिस एक्शन रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, जिसके वजह से नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। तुमने एक्शन किसी पे दिया, रिएक्शन तुम पे आया, ठीक है ना। तुमने अगर किसी थप्पड़ मारा तो भाई थप्पड़ लगा सामने वाले के गाल पर और तुम्हारे हाथ पर रिएक्शन आया, सामने वाले के गाल पे पड़ा एक्शन और तुम्हारे हाथ पे पड़ा रिएक्शन। मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, भाई क्या होगा, मम्मी के हाथ, तुम्हारे गाल पे पड़ा एक्शन तो मम्मी के हाथ पे पड़ा रिएक्शन। इसलिए मम्मी लोग कभी डंडे से मारे तो क्या हो रहा है, डंडे से तुम्हें पड़ रहा एक्शन और डंडे पे पड़ रहा रिएक्शन। मम्मी जब कभी थप्पड़ मारी तो तुम्हारे मम्मी के भी हाथ में उतना ही दर्द हुआ जितना तुम्हारे गाल पर हुआ। बस ये बात है, गाल ज़्यादा सेंसिटिव है तो ज़्यादा दर्द होता है ना, हाथ थोड़ा कम सेंसिटिव है तो कम फील होता है, बट एक्शन रिएक्शन पेयर हर जगह काम कर रहा है। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नाउ दिस इज समथिंग अबाउट द very important type of non-contact force. In our first session of this chapter, I talked about there are two types of forces, contact and non-contact. The first example of non-contact force was gravitational force. I talked about it already in my discussion there, है ना, उस सेशन मैंने बात कर लिया था। हर दो masses के बीच में एक attractive force prevail करता है, and this was said to us by again Newton only. There's something called Newton's law of gravitation. There's something called Newton's law of motion, which we talked about till now, and there's something called Newton's law of gravitation. He said कि हर दो मास पर एक attractive force काम करेगा एक दूसरे के वजह से, and this force is proportional to the product of the masses and inversely depends on the distance between them, distance square, and equal to लगाते हैं कैपिटल G लगाया गया। ये कैपिटल G न्यूटन डिस्कवर नहीं कर पाया था। ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये डिस्कवर किया था एक और साइंटिस्ट, उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। इस जी के वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट था, एकदम भी बिल्कुल भी आसान नहीं था,
तुम सोचोगे क्या कि भाई अच्छा सर m1 m2 दोनों अगर एक एक kg का हो जाए, दोनों में सेपरेशन 1 हो जाए, तो जो फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे पर वही मेरा वैल्यू ऑफ g होगा। इट्स नॉट दैट इजी, बिलीव मी। कभी भी तुम एग्जांपल हो, तुम इस रिमोट को ही लो, तुम अगर इस रूम से सब कुछ हटा दो, पर इस रूम के आसपास दीवार तो रहेगा ना, उन लोग तो इसको अट्रैक्ट कर ही रहा है। मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, तुम कभी भी एक कंडीशन ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते कि जहां पे सिर्फ 1 kg का मास ये हो, 1 kg का मास ये हो, ये दोनों 1-1 का हो, सेपरेशन 1 हो। तुम जहां पे भी रखने जाओगे आसपास कुछ तो और सामान होगा, जमीन तो होगा, है कि नहीं? यू कैन नॉट क्रिएट अ रीजन वेयर देयर इज ओनली दीज टू मासेस एंड they are kept at a separation of 1 meter and there's nobody surrounding it. Even if you are going to measure अच्छा कि क्या हो रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, your mass will get involved in the picture. I hope कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस कैपिटल जी का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम रहा था उस एरा में। न्यूटन नहीं निकाल पाया था, हेनरी कैवेंडिश बोल के एक साइंटिस्ट था, वो निकाला, वो डिस्कवर किया ये वैल्यू। Whereas you know all of us should know that G is out of the 3 natures constant, नेचर में 3 मेन कांस्टेंट है, उनमें से एक कांस्टेंट G है, कैपिटल G. It's called universal gravitational constant and the value of this capital G is 6.67 10 to the power minus 11. That's the value of capital G. So what is it? The force of attraction acting between the two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. ठीक है? This force is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. This force acts along the line joining the two particles. ये force कैसे काम करेगा? इन दोनों को लाइन को जोड़ो, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो लाइन जॉइनिंग देम के अलॉन्ग में काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये G की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 to the minus 11। तुम्हें अगर यूनिट निकालना है G का, कभी भी किसी यूनिट निकालना है, तो तुमको पता है F क्या है? G m1 into m2 by r square। C को यूनिट कैसे निकालते हो? G को अकेला कर दो तो G क्या हो जाएगा? F into r square m1 into m2. What is the unit of force? Newton. What is the unit of r? Meter square. What is the unit of m? Mass. kg square. तो यूनिट क्या हो गया G का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जब कभी किसी का भी यूनिट निकालना होता है, उसे अकेला कर दो। और कब अकेला करोगे? पहले तो उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन देखो एंड देन ट्राई टू आइसोलेट दिस वेरिएबल विच यू वांट टू वर्क ऑन। तो G is equals to FR square by m1 into m2. F is Newton, R is like a length, so meter square, kg into kg square. So the unit here is Newton meter square per kg square. Right? That's the value of capital G. That's called universal gravitational constant, whose value is 6.67 10 to the power minus 11. So the universal law of gravitation says दुनिया में हर दो मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय G m1 into m2 by r square, where m1 and m2 are the two masses you are considering. R is the separation between those two masses and capital G is the universal gravitational constant whose value is very small, 6.67 10 to the power minus 11. That's really small. That's very small. I'll tell you. बहुत छोटा वैल्यू है ये इतना छोटा है कि तुम्हारे आसपास, जैसे मान लो मेरे में और इस बोर्ड के बीच में भी ये फोर्स काम कर रहा है। लेट मी जस्ट अज्यूम दैट दिस बोर्ड इज 100 kg and I am also 100 kg. So 100 we are attracting each other. So even 100 into 100 will be 10 to the power 4, but this is of the order of 10 to the power minus 11. और मान लो मेरे इसके बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, लेट्स से। Even in that condition you'll get the result of 6.67 10 to the power minus 7. 10 to the minus 7, अगर इतना बड़ा फोर्स काम करेगा ना, दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल फोर्स। 6.67 10 to the minus 7 is like 0.000000667, मतलब 0 पॉइंट के बाद 60667 न्यूटन्स। वेरी माइन्यूट फोर्स। इससे काफी तगड़ा तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसलिए ये फोर्स हम लोग फील नहीं कर पाते अपने इधर रूम में। ये सिर्फ तब फील कर पाएगा जब दो में से कोई एक मास काफी बड़ा मास हो या दोनों मासेस काफी बड़े मासेस हो। इसलिए ग्रेविटेशन का ये जो फोर्स है ना, जैसे मेरे में और अर्थ के बीच में फील होता है ना, मेरे के साथ किसी और छोटा बॉडी को ले, कोई रॉड को ले, खिड़की को लो, दरवाजे को लो, उसमें फील नहीं होगा।
मेरा और मेरे संग में मास ऑफ अर्थ, मतलब हम लोग देखें इन दोनों में किसी का भी एक मास कम से कम काफी बड़ा हो जाए तब तो फीलेबल, अदरवाइज फीलेबल नहीं है। और दोनों मास बड़ा हो तो भी फीलेबल है। मतलब लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ तब फीलेबल होता है जब मासेस काफी बड़ी हो, छोटे मासेस में फीलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये फोर्स फील होगा, नहीं होगा। हेवनली बॉडीज में फील होगा, सन और मून के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, है ना, मेरे और अर्थ के बीच में हम लोग फील कर सकते हैं कि हम लोग, हाँ अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस, हम लोग फील कर पाते हैं। क्यों फील कर पाते हैं? बिकॉज अर्थ का मास इतना बड़ा है कि ये कांस्टेंट जो है उसको वो डोमिनेट कर जाता है। आई होप ऑल ऑफ अस नो द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, एनीवन? मास ऑफ अर्थ, एनीवन? कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हो तो देखो नीचे कमेंट में बताना। मास ऑफ अर्थ इज almost 5.89 10 to the power 24 kgs. Radius of Earth is 6400 kilometers और 6.4 10 to the power 6 मीटर। हम लोग इतना पता होना चाहिए, अर्थ पे रहते तो इतना पता होना चाहिए, approximately 6.4 10 to the power 6 meters, right? So characteristic of gravitational force between the two masses, it is always attractive. It can only attract. हम लोग अर्थ का एग्जाम्पल लेके बात करने वाले हैं क्योंकि अर्थ का इतना बड़ा मास होता है कि ये पिक्चर में आ जाता है। इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैं आता हूं इस बात पे, मैं अर्थ वाले केस पर आ रहा हूं। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैंने बताया जैसे चार्जेस, प्लस प्लस चार्जेस को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का, दे कैन नॉट रिपेल। मतलब मासेस एक ही टाइप की होती है, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, प्लस एंड माइनस। देखो दुनिया का ना मैटर का दो प्रॉपर्टी है, एक है मास, एक है चार्ज। एक है मास, एक है चार्ज, है ना। मैंने बताया था भाई सारी चीज़ तुम अपने आसपास जो देखते हो वो एटम से बनती है। एटम खुद किससे बनता है? फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। कौन कौन है भाई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया प्रोटॉन में देखो तो मास और चार्ज दोनों है, इलेक्ट्रॉन में मास चार्ज दोनों है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चलो जो भी हो। पर तुम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स देख रहे हो वो खुद उसमें मास और चार्ज दोनों है। मतलब दुनिया में सब कुछ में मास और चार्ज दोनों है, बस ये है कि कहीं कहीं चार्ज का बैलेंस है, कहीं कहीं चार्ज इम्बैलेंस्ड है, राइट। पर हम लोग हर जगह देखेंगे तो मास और चार्ज दोनों एक साथ दिखता है। तो दुनिया में दो प्रॉपर्टीज हैं, मास एंड चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस एंड माइनस, नेचर में पाया गया, ऐसा डिस्कवरी हुई समय से हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे केसेस को उठा के देखे और देखते गए अच्छा हाँ चार्जेस दो तरह के होंगे तभी ये सारी चीजें एक्सप्लेनेबल है। अरे अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं हम लोग फिजिक्स में? हम लोग नेचर में जो भी चीज दिखते हैं उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो भी हो रहा है उसे अनफोल्ड करना चाह रहे हैं। वी वांट टू डिस्कवर इट कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, राइट, है ना। तो चार्जेस दो तरह होंगे तभी बहुत सारे फेनोमेना अपने आसपास जो हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। पर मास एक ही टाइप का मिला और एक ही टाइप के मास से काम भी हो गया, सारी चीजें एक्सप्लेन भी हो गई। तो मास एक ही टाइप का होता है और ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात जब मैंने की थी, मैं बताया था वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। नॉर्थ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, एंड सो ऑन, राइट। So that's what it is always attractive. Number one is directly proportional to the product of the masses. Formula ही देख लो ना, force is equals to g m1 into m2 by r square। मतलब product of mass पे डिपेंड करता है और inversely on distance square डिपेंड करता है। Great is inversely proportional to the square of the separation between them. That is, it obeys the inverse square law. Thus, by doubling the separation between the two masses, the force of attraction B between them is reduced to 1/4। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, फोर्स 4 गुना घट जाएगा। अगर देखा जाए इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, इफ r becomes doubled, if r is doubled, force reduces by 4 times, force reduces by 4 times। if f is proportional to 1 by r square, if radius is doubled, separation is doubled, r square हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 4r square हो जाएगा, force will reduce by 4 times, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स इज सिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज बिकॉज दोनों के तब मासेस बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू काफी छोटा है, तो वही लिखा है। बट इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन ऑर्डिनरी बॉडीज बिकॉज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ जी, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, अगर दो में से एक बॉडी अर्थ और दूसरी बॉडी हम लोग हो, मानो कोई पत्थर या फिर हम लोग, तो GMM by r square, जहां पे इस GM by r square को ही हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स इज व्हाट? GM1 m1 into m2 by r square,
ठीक है, ये सेंटर से सेंटर नापा जाता है। अगर ये पत्थर जमीन से, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है वही हम लोग इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। वी राइट दैट GMM by r square is the force of gravity, right? Gravitational force, where then we can just divide this by mass and we'll get acceleration. The force by mass is acceleration. So we are left with Gm by r square, where Gm by r square is capital G is a constant, m is the mass of earth and r is the radius of earth. So this becomes small g, where small g is said to be gravity. इसे ही gravity कहते हैं। मैं by the way बता दूं, ये कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है और यही डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड अर्थ रहेगा। अगर ये स्टोन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर नहीं है, सेपरेशन अगर बहुत बड़ा होता तो हम लोग दूसरा R लेते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस स्मॉल g ग्रेविटी is what? Gm by the separation square, and this separation is almost equal to the radius of the earth when the object is kept very close to the earth's surface. If the object is kept very far from the earth's surface, then obviously we have to take the new separation, and you will understand obviously that when the r increases, that g will decrease. The value of this gravity, this is called gravity, the small g is said to be gravity. We term this as acceleration due to gravity. दिख रहा है ना, फोर्स बाय मास। हम लोग बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं। अर्थ के वजह से अपने आसपास ना अर्थ एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, उस फील्ड को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो वैल्यू ऑफ जी इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको बहुत बार बहुत जगह हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, पर जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आता है वैल्यू, जब ये अर्थ के सरफेस के आसपास है। तो जब कोई बॉडी को हम लोग किसी एक बिल्डिंग से रिलीज करते हैं तो बॉडी विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ दिस एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ अर्थ्स इन्फ्लुएंस, राइट? इसलिए इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हेन यू रिलीज अ बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ अर्थ, जैसे तुम भी अगर कोई भी सामान अपने बिल्डिंग अपने खिड़की से बाहर निकाल के छोड़ोगे तो नीचे वो स्पीड अप करते हुए जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाएगा, स्पीड अप करता हुआ जाएगा, ठीक है ना? तो द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस, जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, तुम छोड़े स्टार्टिंग स्पीड 0 था, एक सेकंड बाद पता है कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद पता है कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। अगर जी को तुम 10 एज्यूम कर रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी को तुम 9.8 एज्यूम करोगे तो आफ्टर 1 सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद 19.6 मीटर पर सेकंड, एवरी सेकंड इट विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, राइट? और ये बना क्यों? बिकॉज ऑफ Earth's gravitational field. So we name this as acceleration due to gravity. ये वैल्यू क्या है? Gm by r square, जहाँ पे G, M और R ये तीनों पता है। इसी को पुट करके सॉल्व करने पर लगभग 9.8 आता है। यू में ट्राई आउट 9.88 के आसपास आता है। कुछ फैक्टर्स है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अभी अपने स्टैंडर्ड पर, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, रोटेशनल इफेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। उस रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग इग्नोर करके बात कर रहे हैं। तो तुम लोग ये जो वैल्यू पाओगे ना, ये अप्रोक्सीमेट होगा। यू कैन ट्राई दिस आउट योरसेल्फ। जी के लिए मैंने बता दिया 6.67 10 to the power -11, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर यू मे जस्ट ट्राई दिस आउट। 5.89 बहुत जगह 6 10 to the power 24 ले लेता है अप्रोक्सीमेट में kgs, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10 to the power 6। यू मे जस्ट प्लग इन एंड ट्राई टू चेक कि वैल्यू 9.8 के आसपास आ भी रहा है कि नहीं। 9.6 के तो आसपास आई गई, देख लेना। कुछ इफेक्ट्स को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा इफेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं? अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट को, ठीक है? और ये क्या है फिर जी? जब कभी किसी बॉडी को तुम अर्थ के इफेक्ट में रिलीज कर देते हो, फ्रीली छोड़ देते हो, तो वो बॉडी हर सेकेंड इस रेट से अपना वेलोसिटी इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई वी नेम दिस एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। वी नेम दिस एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। So the rate at which the velocity of the freely falling body increases is called acceleration due to gravity. In other words, it is acceleration produced in a freely falling body. Freely falling body का मतलब whenever you release a body and you are not putting any force on it, you are giving no contact on it, बस तुम एक बॉडी को भगवान भरोसे छोड़ दिए, कोई भी एक सामान को अपनी खिड़की से बाहर निकाल के छोड़ दिए, तो उसे कहते हैं freely falling. Freely falling मतलब you are not giving any force on it, बस अर्थ के भरोसे रिलीज कर दिए। Freely falling body due to gravitational force of attraction of the earth, so it will start falling because of earth. वो नीचे गिरेगा। एप्पल नीचे गिरा था,
एप्पल नीचे गिरा था न्यूटन का, वो ऊपर नहीं गया था, बिकॉज वो फ्रीली फॉल किया था, टूटा वो पेड़ से और फ्रीली फॉल किया, राइट? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय लेटर जी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी अलग है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी अलग है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी, राइट? इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एन एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन बाय कैपिटल जी। दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग हैं। तो an acceleration produced on a freely falling body due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity। ये डिफरेंस देख लो, इंपॉर्टेंट है। Gravitational constant is numerically equal to the force of gravitation that exists between two bodies of unit mass। अब जितने आसानी से लोग डिफाइन कर रहा है ना, इतने आसानी से मिला नहीं था उस समय, डिस्कवर नहीं हो पाया था। इन लोग बोलते हैं कि अच्छा यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ओके यू कैन डू लाइक दिस, व्हाट? प्लग इन मास 1 सेपरेशन 1, मतलब टेक टू masses, understand this, take two masses each of 1 kg kept at a separation of 1 meter, the force they will feel if you can measure that will be equals to g। you can check this, F is equals to g है ना, अरे 1 into 1 तो 1 by 1, तो g into 1 is like g, so whatever the force you get that is the value of g। That's how they have defined. Gravitational constant is numerically equal to the force of gravitation that exists between two bodies of unit mass kept at a unit distance from each other। That's how they have defined it। ये डिफाइन किया गया इसी को देख के, अगर दोनों मासेस 1 kg के ले लें, सेपरेशन 1 मीटर, whatever the force is, that is the value of capital G, right? And how they have defined acceleration due to gravity? An acceleration produced on a freely falling body, एक freely falling body, एक बॉडी को बस छोड़ दो, जिस साइड से वो एक्सेलरेट करेगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी नियरली अर्थ सरफेस इज 9.8, एज आई सेड, अर्थ सरफेस के पास 9.8 है, अर्थ सरफेस से दूर जाओगे 9 पॉइंट नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमेगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। दूर जा रहा है, अर्थ का इफेक्ट कम पहुंच रहा है, अर्थ का इफेक्ट कम पहुंच रहा है। ऑल्सो आई विल टेल यू दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, अर्थ सरफेस के अंदर अगर तुम डिग इन करोगे ना, अंदर जाओगे, तो भी जी की वैल्यू कमती है। मतलब तुम अगर होता है ना कि अर्थ के अंदर खोद के अंदर, अर्थ के अंदर डिग इन कर रहे हो, अंदर जा रहे हो, तब भी जी की वैल्यू घटेगी। मैक्सिमम जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर रहती है, ऊपर जाओगे तो भी घटेगा, नीचे जाओगे अगर अंदर डिग इन करोगे तो भी घटेगा, ठीक है? And it may vary from place to place, that's what they have said। Value of G is always this, it's always a constant, it's universally constant। अर्थ पर, अर्थ के बाहर, दूसरे गैलेक्सी में, हर जगह जी की वैल्यू यही रहेगी, राइट? एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूनिट ऑल्सो। डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, है ना, ऑब्वियसली अर्थ से कितने दूर पर हो, independent of the distance between the masses, because that's a constant। SI unit is an unit of acceleration and that's the unit for gravitational constant। Now what is free fall? What is free fall? Whenever an object is only under the influence of gravitational force, there is only one force acting, which is gravitational force, there is no other force acting। जब कोई बॉडी को तुम रिलीज कर दो, वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स प्रिवेल करे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे तुमने एक क्रिकेटर ने कोई बॉल उछाला, बॉल ऊपर गया और जब नीचे आ रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए तो वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटी का फोर्स। या फिर कुछ ऐसे सोचो ना, तुम एक बॉल को जब ऊपर की तरफ उछाल देते हो तो क्या हो रहा है? वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज सेड टू बी, वो जो कंडीशन में जब बॉडी नीचे गिरती है ना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, फिर नीचे जब गिरेगी, दैट्स कॉल्ड अ फ्री फॉल कंडीशन। देयर इज नो अदर फोर्स। जब यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, इसके बाद सिर्फ यहाँ पे जी काम कर रहा है, इट्स अ फ्री फॉल, ठीक है? whenever an object is only under the influence of gravitational force, no other force of the earth is said to be free fall। A stone thrown upward reaches a certain height and then starts falling down, highest point पे इसका velocity zero, सिर्फ gravity और कुछ काम नहीं कर रहा है, we say the body is going through free fall। हम लोग इक्वेशन यूज किए थे ना, v equals to u plus at in the chapter of motion। this a is now replaced here by g when the body is मूविंग इन द फील्ड ऑफ अर्थ। जब भी कोई बॉडी को तुम रिलीज करते हो, फ्री फॉल करवाते हो या फिर बॉडी को उछालते हो, तो वहां पे ए की जगह ग्रेविटी वर्ड यूज होगा। हाफ याद है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ, इसका यूज करते थे लास्ट चैप्टर में। इंस्टेड ऑफ ए विल बी यूजिंग हियर जी, बिकॉज जी इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन बट ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मतलब जब कभी कोई बॉडी बिल्डिंग के ऊपर से फेंका जाए या जमीन से उछाला जाए, ये सारे केसेस की बात जब करेंगे ना बच्चों, तो हम लोग ये जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। याद आ रहा है? हाँ,
यहाँ पे एक ही जगह सब जगह g आ गया है, राइट? Instead of a we'll be using g here. I hope all of us understand what is mass and weight. Mass of the body is the quantity of matter. बस weight of the body is the force with which the earth attracts. I hope all of you can recall back what is weight. mg. कैसा है mg? अरे फॉर्मूला अभी थोड़े बताया था ना पहले. F क्या था? g m of earth into m by r square. इस पूरे को ग्रेविटी बोल दो, तो ये m into g, इसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं. जिस फोर्स से अर्थ पुल कर रहा है उसे हम लोग वेट कहते हैं. वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. याद रखना, वेट इज ऑलवेज, इफ यू आर हियर, वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर. इफ यू आर देयर, तुम्हें लगता है तुम्हें नीचे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम रिस्पेक्टिवली नीचे तरफ नहीं, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हो. हाँ या ना? सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर इज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है? वेक्टर मतलब इट हैज अ डायरेक्शन, स्केलर मतलब नो डायरेक्शन. इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. क्योंकि दो बॉडी जो भी हो, ग्रेविटेशन के लॉ से सेंटर अट्रैक्ट होती है. ठीक है? यूनिट इज केजी एंड यूनिट हियर इज न्यूटन या फिर डाइन. ये 105 दिख रहा है पर ये 10 to the power 5 है एक्चुअली. 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन. दैट्स अ रिलेशन. 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन. जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, F इक्वल्स टू ma होता है. ठीक है? तो 1 न्यूटन इज 1 kg into 1 meter per second square. SI है ना? SI right. But what is 1 kg? 10 to the power 3 gram. And what is 1 meter? 10 to the power 2 centimeter. है ना? 1 meter is 100 centimeter. 1 kg is 1000 gram. That becomes 10 to the power 5 gram centimeter per second square, which is said to be dyne. The SI unit of force is dyne, whereas the SI unit of force is Newton, whereas the CGS unit of force is dyne. Pardon me. The SI unit of force is Newton and the CGS unit of force is dyne, right? Great. So the gravitation unit of force is, now what is the gravitation unit of force? kgf. जैसे मैं बोलता हूँ मेरा वेट कितना है, मैं बोलूँगा 60 kg. गलत ना 60 kgf. वेट 60 kg नहीं है, मास 60 kg है, वेट 60 kgf होगा. What do you mean by a kgf? Now every kgf means the force acting on a mass of 1 kg by earth. 1 kg into g, इतना न्यूटन्स. every kgf means कि भाई अगर 1 kg का बॉडी ले, उस पे अर्थ के वजह से जो फोर्स लगेगा, मतलब 1 kg into g, इतना न्यूटन्स is like 1 kgf. So if I say 50 kgf is my weight, it means 50 kg into g newtons. तो kgf मतलब उसके संग में into g है एक संग में, है ना? kg force, F for force. So 1 kilogram, kgf means 1 kilogram force is the force due to the gravity on a mass of 1 kg. अगर 2 kgf है तो 2 kilogram force the force due to gravity on a mass of 2 kg. समझ रहे हैं? 1 gram force the force due to the gravity on a mass of 1 gram. तो जो फोर्स अर्थ के वजह से 1 kg के बॉडी पर लगता है उसे 1 kg फोर्स कह देते हैं. मतलब मेरा मास अगर 60 kg है तो मेरे पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग 60 kgf बोल देंगे. इट इज एक्चुअली व्हाट 60 kg into g, है ना? m into g. तो वही बात है. तुम अगर 60 kgf बोलते हो तो मतलब ये क्या है, तुम्हारा मास 60 kg है और 60 kg का मतलब 60 kg के बॉडी पर जो फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से वो 60 kgf कहलाएगा. एक्चुअली अगर वैल्यू वाइज देखना हो तो 60 into g कर दो, इतना न्यूटन्स हो जाएगा. ये कन्वर्जन हो गया जैसे. ग्राम फोर्स का 1 ग्राम फोर्स इज 980. तो तुम चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 kgf क्या हो गया फिर 9.8 न्यूटन्स. कैसे? 1 into 9.8. हाँ है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ग्राम फोर्स इज द सीजीएस यूनिट. ग्राम फोर्स द सीजीएस यूनिट. तो यू कैन ऑब्वियसली ट्राई दिस आउट ऑल्सो कि 1 ग्राम फोर्स कितना हो गया 1 ग्राम के मास पर जो जी का वैल्यू काम करे. ठीक है? तो जी का वैल्यू काम करे. जी का वैल्यू सीजीएस में होता है 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो 980 इंटू दिस विल बिकम 980 डाइन. अरे कुछ नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर को क्या कर देंगे
100 मीटर जगह 100 लगा देंगे, 1 मीटर इज लाइक 100 सेंटीमीटर, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जो तुम बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू कैन राइट दिस ऑल्सो एज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑल्सो। ये CGS हो गया, ये SI हो गया, बस खत्म। तो ये कन्वर्जन मैंने दिखाया। 1 kgf इज जी न्यूटन्स, वहां पे जी का वैल्यू कितना लिखोगे 9.8 न्यूटन्स, और यहाँ पे 1 gf इज जी डाइन, डाइन मतलब तुम लिखोगे 980 डाइन। ठीक है, लेट्स डू फ्यू न्यूमेरिकल्स, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ? तो भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। F इक्वल्स टू 10 न्यूटन एट अ सर्टेन सेपरेशन। ये है मास m1, ये है मास m2, और सेपरेशन कोई भी r था। सेपरेशन इफ इज रिड्यूस टू हाफ, तो अगर पहले फोर्स था g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, नाउ द न्यू फोर्स इज g m1 इंटू m2 बाई r बाई 2 का स्क्वायर। व्हाट दिस बिकम्स 4 times g m1 into m2 by r square. What is this? This is F, or what is this? 4 into 10. So the new force will become 40 newtons. अगर सेपरेशन डबल होता तो फोर्स 4 गुना घटता, सेपरेशन अगर हाफ हुआ फोर्स 4 गुना बढ़ा। जी m1 into m2 by r by 2 का स्क्वायर, r square by 4 times. A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. 3 सेकंड में जमीन पहुंच रही है। जी की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड। बॉल किस हाइट से रिलीज किया गया था? किस हाइट से बॉल रिलीज किया गया था? A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. 3 सेकंड बॉल नीचे पहुंच रहा है। Find the height from which the ball was released. 3 सेकंड बॉल नीचे पहुंच रहा है। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? वी नो टाइम, वी नो एक्सेलरेशन। तो बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला। S कितना है निकालना है, U कितना है 0 है, हाफ कितना है पता नहीं, A कितना है 9.8, T कितना है 3 का स्क्वायर मतलब 9 है ना। This becomes 4.9। ठीक है 4.9। कोई दिक्कत अभी तक में किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक में? तो ये हो जाएगा 44.1 मीटर्स। ये हाइट है। क्वेश्चन पार्ट ए। वही मोशन वाले फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं। जिन लोग मोशन पढ़े उनको पता लग जाएगा चीज। जिन लोगों ने मोशन नहीं पढ़ा है इस न्यूमेरिकल को पहले मत करना, पहले मोशन पढ़ना फिर आना ये सारे न्यूमेरिकल्स तब करना। द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो फॉर्मूला लगा दो v इक्वल्स टू u प्लस AT। u 0 है, a कितना है 9.8, t कितना है 3, कितना हो जाएगा ये 29.4 मीटर पर सेकेंड है ना, 9.8 into 3। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इससे फिका गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अच्छा भाई जब बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं हाईएस्ट हाइट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन मोशन आल्सो। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 49 मीटर पर सेकेंड, राइट? g is acting onward, right? So write down v square equals to u square plus 2s. Why we are using this formula? इस वाले इक्वेशन में टाइम का जिक्र नहीं है और क्वेश्चन में टाइम बताया हुआ भी नहीं है। 3 फॉर्मुला था, s equals to ut plus half AT square, v equals to u plus AT and v square equals to u square plus 2as. So what is v here? 0. What is u here? What is u? 49. 49 का स्क्वायर माइनस क्योंकि तुम बॉल को उछाल रहे हो ऊपर और g काम कर रहा नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन। 9.8 okay and into s. So what is this? 49 into 49 by 2 into 9.8 को लिख सकते हैं
98 और ऊपर 10 लगा दो, और इस 98 को तोड़ के लिख दो 2 × 49। कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई करने में आसान होगा। मैंने 9 पॉइंट को लिखा 98/10 और फिर 98 को भी लिख दिया 2 × 49। मैंने 98 को हटा के 2 × 49 लिख दिया, तो 49 और 49 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज इट, 490/4 बचा है। दिस बिकम्स 490/4। हाँ या ना, दिस विल बिकम 1, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 2 122.5। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, u 49 का स्क्वायर माइनस 2 × 9.8, तो इधर लिख दिए 49 × 49, 9 पॉइंट को ऊपर लिख दिए 98/10 और 9 को लिख दिया 2 × 49, 49 कट गया, 2 × 4, 490/4 which is 122.5 meters is the height attained। ठीक है, the time taken by it before it reaches the ground again, तो जितना देर ऊपर जाने में लगा था उतना देर नीचे आने में लगेगा। तुम यहां से ऊपर जाने का टाइम निकाल दो, फिर यहां से आने का टाइम जो भी होगा उसको डबल कर देना, क्योंकि जो यहां से आने का टाइम लगेगा वो यहां से आने का टाइम लगता है। सिमेट्रिकल मोशंस होते हैं सारे, है ना, जाने का और आने का टाइम सेम होता है यहाँ पे। तो क्या करोगे तुम, चाहो तो v = u + at लगा दो। तुम्हें पता है हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट मतलब वेलोसिटी 0, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 होता है, याद रखो। हाईएस्ट हाइट का मतलब वेलोसिटी 0, मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताया था ये बात। v = 0, u कितना 49, ये कितना 9.8 × t निकालना है। ठीक है, तो 49/98 × 10 ऊपर लिख दो, इस 98 को लिख दो 2 × 49 वापस, 49 कट गया, कितना बचा ये 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स, जाने का 5 आने का 5, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड्स। आंसर पार्ट 2 का जाने का 5, कैसे जाने का 5, v = u + at में हाईएस्ट हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, u 49 है, a कितना है 9.8, t निकालना था, सॉल्व किए, सॉल्व करने पे आया 10/2, 10/2 मतलब 5 सेकेंड्स, जाने का 5 आने का 5 मिला के 20 सेकेंड्स। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो मैं क्वेश्चन अभी कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन लोग मोशन में कर चुके हैं। ठीक है, मोशन में कर चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं फटाफट सब लोग एक ये क्वेश्चन, 2 3 4 ये चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं टाइम दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर 1, ये एक क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क रहेगा भाई सबके लिए। एक हम लोग ये सब क्वेश्चन मोशन में कर चुके हैं पहले भी। 2 दूसरा नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 3 4। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन। बच्चों आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पर लगभग सारी बातें कर ली। किसी का कोई भी डाउट रहेगा और कुछ भी और क्वेश्चंस करना हो, कोई भी और तरह का प्रॉब्लम हो, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना। मैं अगले वाले वीडियो में सारे डाउट्स को बताने वाला हूं और बचे हुए जो होमवर्क क्वेश्चन तो उसे भी सॉल्व करूंगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रेशर पर होगा। We'll start and we'll continue with this in the coming session, coming days. Please try to complete whatever we have done till now, and keep going through every inch and everything of it very precisely, very properly. Or कोई भी doubt हो, please do let me know. We'll end up here at this point of time for this session. Thank you. Keep watching, keep learning. Thank you. Bye bye.